Assalamu alaikum dear students. Welcome to the course of International Relations for undergraduate classes conducted by ComSet Institute of Information Technology, Virtual Campus Islamabad. Dear students, in the previous lecture we discussed about the approaches that we use in international relations. Let's have a review of that lecture before we go on with our new lecture. तो उस लेक्चर में हमने अप्रोच को डिस्कस किया. Approach is looking at the issue or the problem from a particular angle and then explaining the phenomena, explaining the events, explaining the problem from that particular angle. चूँकि IR में हमारे पास जो scholars हैं, so they chose different angles while explaining a topic, while explaining a phenomena. So therefore they would arrive at different interpretation. They would arrive at different explanations. So this looking from that specific angle, from specific direction is called approach. इस approach में हमारे पास जो दो main approaches हैं, they are called classical approach and scientific approach. What is classical approach? Classical approach को traditional approach भी कहते हैं. In that approach, the scholar report and analyze the international events, issues and problems, and then speculate on these. While speculating on these, while drawing upon these, while explaining those phenomena, तो वो क्या करते हैं? वो एक वर्क को जज करते हैं by the scholar who is presenting that work. कि वो जो स्कॉलर जो उसको प्रेजेंट कर रहा है, उस स्कॉलर की वर्थ क्या है, उसका एक्सपर्टीज कितनी है, वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, उसका लेवल ऑफ नॉलेज कितना है, और वो जब अपनी राय बनाता है तो हाउ ऑब्जेक्टिव इज दैट ओपिनियन ऑफ दैट स्कॉलर. सो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स द ऑथेंटिसिटी, वो जो वाकया है उसकी हकीकत इसी बेसिस पे बनाई जाती हैं और फिर इसको ट्रस्ट किया जाता है. एंड देन दोज फिनोमिना, दोज एक्सप्लेनेशंस आर रिगार्डेड एज reliable and valid. So while this classical approach is basically the descriptive approach, ये एक बयानिया तरीका है. इसमें scholars वाक़यात को बयान करते हैं और जब बयान करते हैं तो remember हमारा मकसद वही है कि वो कितना अपनी personality को, अपनी ज़ात को, अपनी पसंद नापसंद को एक तरफ रखता है और उस वाक़े की सही तरीके से निशानदही करता है और उसको explain करता है. So after this we comes towards scientific approach. Scientific approach thinks that it believes that IR involves people and thus can be understood, analyzed, explained and predicted like other science discipline. तो वो IR को एक साइंस डिसिप्लिन का दर्जा देते हैं. वो ये कहते हैं, ये बिलीव रखते हैं कि IR में the people are involved and the people do some actions because of some motive. Their behavior can be understood if the motive behind that is understood. So therefore what we can do is that there should be an analysis of the behavior, and after the analysis of the behavior the generalization is made कि अगर ऐसे situations होंगे तो उसमें एक इंसान ऐसे behave करेगा. So this is basically a scientific approach in which scientists first of all make hypotheses and then they collect data for that hypothesis and then they test the data through some analysis of statistics and then they form generalization and conclusion. So they regard IR as a scientific study. The aim of this approach is to develop theories and general principles to help in understanding international phenomena and predicting events. This is concerned with the method than the substance. क्योंकि ये scientific method है तो ये जो तरीका कार है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जिसमें डेटा को एनालाइज किया जाता है, तो उस मेथड पे फोकस करता है, उस मेथड पे जोर देता है और जो कंटेंट है, जो सब्सटेंस है उसकी तरफ नहीं देखता. क्योंकि जो कंटेंट है, जो सब्सटेंस है वो क्लासिकल अप्रोच में आते हैं जबकि मेथड पे फोकस साइंटिफिक अप्रोच करता है. फिर हमने दो अप्रोचेस फॉर क्लासिकल अप्रोचेस, दे आर कॉल्ड रियलिज्म एंड आइडियलिज्म. तो ये क्लासिकल अप्रोच के दो मेन
टाइप्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया. रियलिज्म इज believing that the world is full of anarchy. It's an anarchical world. It's a world which is full of disturbance, which is full of conflicts. And therefore the state, if it wants to protect itself, it should protect itself by seeking power, by struggling for power. And through this power, when a state is trying to get, so it can protect its national interest by seeking power. The moral principles are different for individuals and state. तो रियलिज्म के मुताबिक जो स्टेट है उसका अल्टीमेट जो मकसद है वो पावर हासिल करना है, और सिर्फ पावर हासिल करने ही से एक स्टेट स्टेबल हो सकता है. एंड एज लॉन्ग एज देयर इज बैलेंस ऑफ पावर, बिकॉज ऑल द स्टेट्स आर स्ट्रगलिंग फॉर पावर, सो व्हेन द पावर्स ऑफ द स्टेट्स आर बैलेंस्ड, सो देयर विल बी सिक्योरिटी. तो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो तनकीद हुई है वो क्या है, वो ये है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन पावर. पहली बात तो ये है कि पावर को डिफ़ाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है. पावर एक सिंगल फैक्टर का नाम नहीं है, पावर में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, इसलिए पावर को डिफ़ाइन करना और इवन पावर को मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट है. देयरफॉर हाउ द रियलिस्ट आर गोइंग टू डिटरमिन पावर, दिस इज़ अ लिटिल बिट obscure, this is not clear. इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि the state try to seek power and they are always in this struggle to increase their power, but we see that this is not the fact. अगर state हमेशा power के लिए struggle करे, so there will be a non-ending race between the states and the state would always be struggling and competing. But we see that the states also cooperate with each other. वो एक दूसरे के साथ तावन करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, alliances बनाते हैं. So as a result, not all the action of the state are aimed at increasing power. इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि state action are always governed by seeking their power or increasing the power. But we see this is not the fact. क्योंकि जो states हैं उनके बहुत से ऐसे काम हैं जो कि पावर नहीं देती. For example, organizing conferences, organizing seminars, conducting different types of games, Olympic games जैसे हो गए, जिस तरह स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो गए, तो इसमें कोई स्टेट की पावर ज़्यादा नहीं होती, but still the state actions are diverted and directed to do these activities. इसी के साथ रियलिज्म का ये भी एक व्यू है कि the world is trying to have balance of power. And because of balance of power, there will be security. But we see that at present, there is no balance of power. There is unipolar world. There is only one superpower. और इसलिए power imbalance है. लेकिन इसके बावजूद there is peace and there is security. इसी के साथ the realists think that the states are increasing their power. So they are always going for armaments. वो हमेशा असलहे को ज़्यादा करते हैं. लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है और जो इंटरनेशनल फिनोमिना है, तो उसमें द स्टेट्स आर गोइंग फॉर आर्म्स कंट्रोल. दे आर कंट्रोलिंग देयर आर्म्स, दे आर इंक्रीजिंग देयर आर्म्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर rather than a mad race. And the states also through negotiations, also through talking, also through discussions, they are going for disarmaments, which means they are reducing their weapons, they are reducing their arms, they are reducing their army strength. So this is against what is realist thinking. And again the last one is that the concept of realism, this is not based on moral principle. क्योंकि ये सोचते हैं कि जो human है, he is wicked by nature, he is bad by nature, and state are also bad by nature. So the state should increase their power. They always struggle for power. This is not fact. This is not according to moral principle. फिर आते हैं towards idealism. Idealism is against the tenets and the principles of realism. Idealism के मुताबिक human nature is not bad. Human is also good, and they also live in peace. They cooperate with each other. Humans help each other. And as a result, they form groups, they form society. और इसी तरह जो states हैं,
So because states are made up of collection of people, therefore the state also exhibit the same nature. The state will not always struggle for power. The state also cooperate with each other. The state also help each other. And as a result, there will be a time, एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें स्टेट्स आपस में अमन से रहेंगे और उनमें काफ़ी कोऑपरेशन होगा, वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे और जिसकी वजह से एक वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है, एक इंटरनेशनल पीस प्रिवेल करेगी। सो दिस इज़ द आइडियलिस्ट थिंकिंग एंड बेस्ड ऑन दिस they say that this is possible through education, through international organization, through following the principles of international law, and through reason. And because of this, the world can achieve a stable international order and world peace. But if we look at both of these two approaches, the realism approach and the idealism approach, we see that realism is more close to reality. हकीकत के जो करीब आ रही है वो रियलिज्म है, क्योंकि आइडियलिज्म ज़रा ज़्यादा ख्याली की तरफ चले जाता है, दैट्स बिकम्स अ बिट फार फ्रॉम रियलिटी। कंसेप्ट यही है और आजकल की जो रियलिटी है वो यही है कि द स्टेट्स आर स्ट्रगलिंग फॉर पावर, दे वांट्स पावर एंड थ्रू द पावर दे वांट टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी एंड देयर वेलफेयर and to seek their national interest. So this was the review of our previous lecture. Let's start our new lecture, which is about deterrence and limited war. Let's see what we can study in this unit. In this unit, we will study about deterrence concept and definition, forms of deterrent threats, enforcing deterrence, types of deterrence, direct deterrence, extended deterrence, immediate and general. So these are some of the types. Then we will study dangers behind defending protege, limited war, examples of limited war, and why limited war. So this would be the concept that we will be studying in this unit. Dear students, if you look at this image, you can see that a teacher is punishing a student. She is punishing a child. So what we can say that why and what is the purpose of teacher's punishment? The reason for teacher punishment is that the punishment acts as a deterrence. The punishment prevents some actions which the teacher does not want. For example, the teacher wants that the child should study and the child should always work hard. And if the child does not work hard, if the child start failing in the subjects, then the teacher become angry and then the teacher will exert some punishment. She will give some punishment to the students. तो हम ये कह सकते हैं कि जो punishment है वो एक ऐसा concept है जो कि बाज रखता है students को ऐसे behavior करने से जो कि टीचर पसंद नहीं करता। तो कोई ऐसा एक्शन जिसको कोई पसंद ना करे और इसलिए वो उस एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए पीछे कुछ मुहर्रिकात रखता है, उसे कहते हैं डेटरेंस। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम मोर एग्जांपल। सो इन स्कूल द टीचर पनिशमेंट एंड द फेल्यूर इन एग्जाम इज डेटरेंस। इफ द स्टूडेंट डज नॉट वर्क, देन पनिशमेंट। तो स्कूल में क्या मोटिव्स होते हैं कि एक बच्चा काम करे, वो काम चोरी ना करे, वो हमेशा दिल लगा के और मेहनत से काम करे। अगर एक स्टूडेंट को फेल होने से बचाना है तो पीछे कुछ डिटेरेंस है, पीछे कुछ ऐसे अवामिल हैं कि जो इन्फोर्स होंगे अगर वो बच्चा काम ना करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट डज नॉट डू एनी वर्क, देयरफॉर द डिटेरेंस इज दैट he will get punishment. तो punishment के खौफ से फिर वो बच्चा काम करता है। इसी तरह एग्जाम में फेल होने का जो डर है उसकी वजह से बच्चा काम करता है। तो बच्चे को बता दिया जाता है कि अगर आपने काम नहीं किया तो फिर उसके बाद ये उसके नताइज होंगे कि या तो आपको पनिशमेंट मिलेगी और साथ में आप फेल हो जाओगे। तो ये फेल होने से बचने के लिए और अपने आप को पनिशमेंट से बचाने के लिए फिर वो बच्चा
काम करता है और मेहनत करता है. So this is how the child do a particular activity which the teacher or which the school wants the child to do. इसी तरह वालिदैन की जो सैडनेस है, जो वालिदैन का अफसोस है या वालिदैन का गुस्सा आ जाता है, वो किस बात पे होता है कि अगर बच्चा काम ना करे, तो जिसकी वजह से बच्चा ये देखता है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो फिर जो मेरे वालिदैन हैं उनको अफसरदगी हो गया, वो उसको बुरा मनाएंगे, वो खफा हो सकते हैं, वो गुस्से में आ सकते हैं. तो अपने पेरेंट्स को का गुस्सा बचाने के लिए, उनको एम्बेरस ना करने के लिए फिर बच्चा मेहनत करता है. तो यहाँ पे जो डिटेरेंस है वो वालिदैन की अफसरदगी है, वालिदैन का गुस्सा है, जो कि एक चाइल्ड अवॉइड करने की कोशिश करता है. इसी तरह सोसाइटी में अ पर्सन कमिट क्राइम, एंड इफ द पर्सन कमिट क्राइम, सो व्हाट इज द डिटेरेंस? द डिटेरेंस इज द जेल, द इम्प्रिजनमेंट इन द जेल. सो द पर्सन इज गिवन सम पनिशमेंट. तो अगर सोसाइटी में जुराइम को बचाना है तो पीछे एक डिटेरेंस है, और वो जो डिटेरेंस है जो कि लोगों को जुराइम करने से रोकता है, तो वो क्या है? वो पनिशमेंट है. एंड देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स. जो क्राइम जितना ख़तरनाक होगा उसकी पनिशमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी और उतना ही वो ज़्यादा डिटेर करेगा, ज़्यादा रोकेगा. तो डिटेरेंस का मतलब है बाज रखना, किसी को रोकना किसी काम से. इसी तरह अगर दो स्टेट्स हैं, एक स्टेट ताकतवर है, दूसरा स्टेट कमज़ोर है, तो क्या होगा? क्या एक कमज़ोर स्टेट ताकतवर स्टेट के ऊपर हमला करेगा? क्या वो उससे लड़ेगा? तो नहीं. अ वीकर स्टेट विल नॉट प्रेफर टू फाइट विद द स्ट्रॉन्गर स्टेट, because the strength of the stronger state, the force, the power of the stronger state is the deterrence. जो बड़ी स्टेट है उसकी जो पावर है वो दूसरे स्टेट को बाज रख रही है, वो उसको अलाउ नहीं कर रही कि उसके ऊपर हमला कर दे. which means power is also a deterrence. अगर कोई पावरफुल है तो दूसरा उससे नहीं लड़ेगा. The success of deterrence is thus measured by how much are the action that it tries to prevent are actually stopped. अगर आपने ये देखना है कि कोई भी जो डिटेरेंस है वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना मुअस्सर है, तो आपने ये देखना है कि वो जो डिटेरेंस जिस एक्शन से बाज रखने की कोशिश कर रहा है वो कितना रोक रहा है, वो कितना पुरअसर है. अगर वो ज़्यादा रोक रहा है उस एक्शन को जिसको वो रोकना चाहता है, तो फिर वो डिटेरेंस ज़्यादा इफेक्टिव है और कामयाब है. सो डिटेरेंस अगेन वी वुड से एज कि कोई ऐसे फैक्टर्स जो कि बाज रखते हैं, जो कि दूसरे को किसी काम करने से रोकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ measure taken by a state or an alliance of state to prevent another state from doing a hostile action. तो IR में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये क्या है? ये ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट को रोकता है कि वो उसके ऊपर अटैक करे या उसके ऊपर कोई ऐसा काम करे जो कि दूसरा स्टेट पसंद नहीं करता. सो in international relations there are always some deterrents. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बाज रखते हैं एक स्टेट को अपनी मर्जी करने से. अगर वो स्टेट अपनी मर्जी करे तो दूसरे स्टेट के पास ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, ऐसे कुछ पावर्स हैं जिनकी खौफ की वजह से ये दूसरा स्टेट वो काम नहीं करता, तो ये डिटेरेंस बन जाता है. इन फॉरेन अफेयर, डिटेरेंस इज अ स्ट्रेटजी intended to prevent an adversary or enemy from undertaking an action not yet started. तो अगेन फॉरेन अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में अगेन एक ऐसा एक्शन है जो कि दूसरे को रोकता है कि वो कोई काम ना करे, तो उसको उस एक्शन से बचाता है. एंड रिमेंबर इट इज़ मोस्टली फॉरेन एनिमी. जब दो स्टेट्स हैं और दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो फिर क्या करते हैं? वो कुछ एक स्टेट ऐसा डिटेरेंस रख देता है ताकि जो दूसरा स्टेट है, जो एनिमी स्टेट है, वो काम ना करे, बल्कि वो उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक
और मर्जी के मुताबिक काम कर सके। तो अगर वो दूसरा स्टेट उसकी ख्वाहिश के मुताबिक काम कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है? क्योंकि देयर इज़ अ डिटेरेंस, वहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद है जिसके खौफ की वजह से वह दूसरा स्टेट उसको फॉलो कर रहा है। द कंसेप्ट ऑफ डिटेरेंस कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ थ्रेट बाय वन पार्टी टू कन्विंस अनदर पार्टी टू रिफ्रेन फ्रॉम इनिशिएटिंग सम कोर्स ऑफ एक्शन। अगेन इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दैट्स द यूज ऑफ थ्रेट बाय वन पार्टी। जब एक पार्टी, जब एक स्टेट, जब एक फरीक दूसरे को धमकी देता है, उसको थ्रेट देता है, और थ्रेट किस चीज़ की देता है कि अगर दूसरा स्टेट कोई ऐसा काम करे जिसको पहला स्टेट नहीं चाहता तो जिसकी वजह से फिर ये नताइज उसके बाद लागू होंगे। तो धमकी इसी तरह दे रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ द अदर स्टेट डू अ पर्टिकुलर एक्शन, for example if it attack that state, so as a result it will face the consequence. This will also be attacked with some dangerous weapons. तो वो जो dangerous weapons पहले स्टेट के पास मौजूद हैं वो डिटेरेंस है। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर वेपन है, तो न्यूक्लियर वेपन्स जो न्यूक्लियर हथियार हैं अगर एक स्टेट के पास हैं दूसरे के पास नहीं है तो जिसके पास वो न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं तो वो उसके लिए एक डिटेरेंस का काम दे देंगे। तो अगर दूसरा स्टेट उसके ऊपर हमला करेगा तो ये स्टेट उसके ऊपर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। तो इस इस्तेमाल के खौफ की वजह से जो पहला स्टेट है वो उसके ऊपर हमला नहीं करेगा और बाज रहेगा। सो इन IR scholarship, a policy of deterrence generally refers to threat of military retaliation directed by one leader of a country to the leader of another in an attempt to prevent the other country from resorting to threat or use of military force in pursuit of its foreign policy goals. तो अगेन हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक स्टेट का जो लीडर है वो दूसरे स्टेट के लीडर को ऐसी धमकी दे दें कि अगर आपने अपनी पॉलिसी जारी रखी है, अगर आपने कोई ऐसा एक्शन किया जो कि दूसरे को नागवार गुजरता है तो उसकी वजह से उसके ऊपर कोई ख़तरनाक किस्म के नताइज लागू हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो पहला स्टेट है वो उन नताइज को देख के विजुअलाइज करके फिर वो एक्शन नहीं करता। सो दिस इज़ हाउ द स्टेट्स आर डिटेर्ड from doing any action. Deterrence theory holds that nuclear weapons are intended to deter another states from attacking with nuclear weapons through the promise of retaliation and possibly mutually assured destruction. ये असल में कब आता है? जब दो स्टेट्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, दोनों स्टेट्स हैं, दोनों के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं और दोनों के पास ख़तरनाक किस्म की न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। बोथ ऑफ देम पोजेस वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। तो जो दोनों के न्यूक्लियर हथियार हैं वो दोनों को रोक रहे हैं, दोनों को बाज रख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर हमला करने से, तो जिसकी वजह से दोनों जो स्टेट्स हैं वो पुरअमन रहेंगे एंड दे विल नॉट रिजोर्ट टू फाइटिंग, दे विल नॉट रिजोर्ट टू एनी कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज दे नो दैट if they come into attack with each other, if they are at war with each other, so because both of them have nuclear weapons, so this means that they have to use their nuclear weapons in case of a war. तो अगर एक स्टेट यूज करेगा न्यूक्लियर वेपन तो दूसरा भी यूज करेगा, लेकिन जिसकी वजह से, क्योंकि न्यूक्लियाई हथियार इतने खतरनाक हैं कि जिसकी वजह से दोनों की जो बका है वो शक में पड़ जाएगी और दोनों तबाह हो सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि दोनों की तबाही यकीनी है, दोनों की जो बाहमी तबाही है वो इस न्यूक्लियाई हथियार की वजह से यकीनी है। तो क्या हुआ, दोनों अपनी न्यूक्लियाई हथियारों की वजह से एक दूसरे के साथ जंग नहीं कर रहे। तो ये जो न्यूक्लियाई हथियार हैं ये क्या हैं? ये डिटेरेंस है, ये दोनों को बाज रख रहे हैं। अगर दोनों के पास ये ख़तरनाक किस्म के हथियार ना होते तो फिर दोनों क्या हो सकते? दोनों आपस में लड़ सकते, दोनों जंग कर सकते, लेकिन अब इन हथियारों की मौजूदगी की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ
जंग नहीं कर रहे, नहीं लड़ रहे, तो ये वेपन्स, ये जो खतरनाक किस्म के हथियार हैं, दे आर एक्टिंग एज अ डिटेरेंट्स. थ्रू आउट द कोल्ड वॉर, the US constantly worried about the possibility of USSR attacking Western Europe. The problem was that in conventional armaments, the Red Army was much stronger. A general war over Western Europe almost invariably meant that the US would have to resort to nuclear weapons. The Americans could say, if you ever attacked Western Europe, we shall fight back with all we have got, including nukes. मतलब क्या है? हम देख रहे हैं कि कोल्ड वॉर में जो दो ट्रेडिशनल एनिमीज थे वो कौन कौन से थे जी? एक है यूएस और दूसरा यूएसएसआर या सोवियत यूनियन. सो बिकॉज ऑफ देयर कोल्ड वॉर, so they were at constant conflict with each other. They were at constant struggle and competition with each other. They did not like each other, and both of them have got weapons of mass destruction. So because both of them have got weapons of mass destruction, both of them possessing nuclear weapons, तो इसमें क्या हुआ? आखिर में अगर हम दोनों की पोजीशन को देखें तो दोनों में से कौन सा मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इन कन्वेंशनल वेपन्स? क्योंकि हमारे पास एक स्टेट में दो किस्म के वेपन्स होते हैं. एक होते हैं आपके वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, जो कि न्यूक्लियाई हथियार हैं या केमिकल वेपन्स हैं या मिसाइल सिस्टम है, और दूसरी तरफ आपके आते हैं कन्वेंशनल वेपन्स जो आपके रिवायती हथियार हैं जिसमें टैंक्स वगैरह और गन शिप वगैरह आते हैं. तो अगर हम दोनों का मुवाजना करें, दोनों के पास न्यूक्लियाई हथियार मौजूद है, लेकिन कन्वेंशनल वेपन्स में कौन सा मुल्क स्ट्रॉन्ग है? वॉज यूएस स्ट्रॉन्गर और वॉज सोवियत यूनियन स्ट्रॉन्गर? So by a comparison of the two armies, it was analyzed that Soviet Union or USSR was very much stronger than United States. तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग थी. उनके पास जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं उनकी अक्सरियत थी, उनके पास वो ज़्यादा तादाद में मौजूद थे. तो अगर दोनों लड़ने पे आ जाएं और दोनों ने अपने न्यूक्लियाई हथियार इस्तेमाल नहीं करने, तो इसका मतलब है कि सोवियत यूनियन जंग जीत सकता है, क्योंकि उसके पास जो रिवायती हथियार हैं वो ज़्यादा हैं और दोनों जो स्टेट्स हैं वो न्यूक्लियाई हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो अगर नहीं करेंगे तो दोनों में जंग हो सकती है और उस जंग के नतीजे में कौन कामयाब होगा? सोवियत यूनियन कामयाब होगा, क्योंकि उसके पास रिवायती हथियार ज़्यादा हैं. अब अमेरिका को भी इस बात का पता है. US also know that in case of a war, it may be defeated by the conventional superiority of the Soviet Union. इसलिए उन्होंने सोवियत यूनियन को रोकने के लिए, उनको अटैक करने से बचाने के लिए उन्होंने ये धमकी दी थी कि इफ़ यू एवर अटैक्ड वेस्टर्न यूरोप, कि अगर आपने वेस्टर्न यूरोप पे कभी भी अटैक किया तो रिमेंबर वी विल हैव नो अदर ऑप्शन बट वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स. हम आपके ऊपर न्यूक्लियाई हथियार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनके पास तो जो रिवायती हथियार हैं उसकी कमी है, उसमें वो ज़रा से नीचे हैं फ्रॉम सोवियत यूनियन. Therefore, in order to avoid defeat, in order to not to be embarrassed by Soviet Union, ultimately the US and its allies has to use nuclear weapons to defend themselves, to protect themselves. अगर वो यूज़ करेगा तो अल्टीमेटली फिर सोवियत यूनियन भी यूज़ करेगा. तो जब दोनों यूज़ करेंगे तो क्या होगा जी? म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. दोनों तबाह हो जाएंगे, दोनों की तबाही यकीनी है. इसकी वजह से जो सोवियत यूनियन है उसने अटैक नहीं किया, उन्होंने बराह रास्त, दोनों की आपस में कोई जंग नहीं हुई. बोथ ऑफ देम स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम कमिंग टू एनी सॉर्ट ऑफ वॉर बिकॉज ऑफ दिस डिटेरेंस. Let's see in the next image what was the actual position between Soviet Union and United States. इस इमेज में आपको नजर आ रहा है कि जो रेड बार्स हैं they are representing the strength of Soviet Union, or you can say the Warsaw Pact. और जो blue है that is representing the power or the strength of NATO countries, which means US and the Western Europe countries. तो आपको नजर आ रहा है
कि तकरीबन सारे बार्स में सिवाय एक के, so the red bar is more than the blue bar, which means the red bar is more stronger, which means the Warsaw Pact is more stronger in traditional weapons, in conventional weapons. तो जिस तरह अगर आपको नजर आ रहा है फर्स्ट बार में कि जो मिलिट्री है वो भी वार्सा पैक्ट के साथ ज्यादा है, दे हैव 4 मिलियन आर्मी अगेंस्ट 2.6 मिलियन आर्मी। इस तरह डिविजन्स भी वार्सा पैक्ट के ज्यादा हैं। इस तरह जो बैटल टैंक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं वार्सा पैक्ट के पास। इसी तरह जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं या वेपन्स हैं तो वो भी ज़्यादा हैं, और इसी तरह बाकी वेपन्स भी उनके पास ज़्यादा हैं। सो दिस मीन्स दैट वार्सा पैक्ट और सोवियत यूनियन was more stronger than US in conventional weapons, and therefore the US have to give the warning of the use of nuclear weapons to protect itself, and these nuclear weapons were acting as a deterrence. It should be clear, however, that policies of deterrence in international politics can include both military and non-military threats that are intended to prevent both military and non-military actions by other states. तो deterrence international relations में सिर्फ military threat का नाम नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ military जो threats हैं या जो धमकियां हैं या जो weapons हैं वो ही सिर्फ deterrence का काम कर सकती हैं। इसके अलावा भी ऐसे हमारे पास factors हैं जो कि military factors नहीं है लेकिन वो भी डिटेरेंस का काम कर सकते हैं। उनको पढ़ते हैं कि आखिर कौन से ऐसे हमारे पास हरबे हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिटेरेंस का काम कर सकते हैं। इन इमेज में आपको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नजर आ रहा है, एंड इन द नेक्स्ट इमेज यू कैन सी द वर्ल्ड, द ग्लोब, एंड बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ द टू सुपर पावर्स द वर्ल्ड is not safe. The world is at a brink of destruction. So this was the concept of deterrence. However, the deterrence theory gained popularity as a military strategy during the Cold War with regard to the use of nuclear weapons. तो जो deterrence theory है जिसमें ज़्यादातर military threat की बात आती है, military threat का use आता है या the use of nuclear weapons की बात आती है, तो this was mainly during the Cold War when the two superpowers were in conflict with each other. So let's see what are the different forms of deterrence threat. So deterrent threats can be military. For example, use of nuclear weapons, air strikes, bombarding coastal area, hitting strategic sites, no-fly zone, etc. तो डिटेरेंस में डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। ये फौजी भी हो सकते हैं जिसमें मिलिट्री थ्रेट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टेट दूसरे को ये धमकी दे कि इट विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स, देयरफॉर द अदर स्टेट विल नॉट रिजॉर्ट टू एनी एक्शन। इसी तरह द स्टेट कैन आल्सो गिव अ थ्रेट ऑफ एयर स्ट्राइक कि अगर दूसरे स्टेट ने कोई काम किया, सो द फर्स्ट स्टेट कैन यूज एयर स्ट्राइक्स, इट कैन अटैक एरियली on that particular state, or it can bombard its coastal area, जो उसके सारे इलाके हैं उसके ऊपर बमबारी हो सकती है, या it can hit the strategic sites, ऐसे sites जो कि दूसरे स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह उनके मिलिट्री बेसिस हैं या कोई और एनर्जी प्लांट्स हैं, so that sites can be hit by the other state, or no fly zone, which means there will be no plane or no flight of the other state in a particular area. So these are some of the military threats that can act as a deterrence. Then comes the diplomatic deterrence. Diplomatic deterrence में ऐसे deterrence है जो कि सफारती सतह पे यूज होते हैं, जब एक स्टेट दूसरे के खिलाफ सफारती सतह पे कुछ सरगर्मियां करता है उसको बाज रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द रिकॉल ऑफ एम्बेसडर्स, ब्रेकिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, एक्सपेलिंग डिप्लोमेट्स एटसेट्रा। तो ये जो धमकियां हैं ये भी काफ़ी हैं दूसरे स्टेट को बाज रखने के लिए। फॉर एग्जांपल, वो अपना सफ़ीर उस मुल्क से वापस बुला सकता है जिसको रिकॉल ऑफ एम्बेसडर कहते हैं, या दूसरे मुल्क के साथ अपने सफारती सरगर्मियां ख़त्म करना, उसको अलग तलग कर देना,
ये भी एक डिटेरेंस का काम कर सकती है, या एक्सपेलिंग डिप्लोमेट्स ऑफ द अदर कंट्री, या जो दूसरा कंट्री है उसके डिप्लोमेट को निकाल देना कि अगर आपने ये काम किया सो वी कैन एक्सपेल योर डिप्लोमेट्स. So based on these kind of threats, the other country can stop from doing any action which the first state does not like. The third is economic deterrence. माशी deterrence, ऐसे deterrence जिनका मकसद माशी सरगर्मियों से है. For example, एक स्टेट दूसरे स्टेट को ये धमकी देता है, ये deterrence के तौर पे इस्तेमाल करता है कि अगर उसने कोई एक्शन किया तो the state will deny loans, it will not give it loans. जिस तरह अमेरिका करता है, यूएस करता है आजकल के ज़माने में, where it threaten any state that if it performs any particular act or action, so it will not be given the loans by the World Bank or by the IMF. So the loans are denied. Similarly, it can freeze the bank accounts. जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर सकता है, उनको मुंजमद कर सकता है, उनको रोक सकता है. The state can also put some trade embargo, which means it can put some trade restrictions. वो वहाँ पे अपनी जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं उसको रोक सकता है. दूसरे स्टेट को ये बावर करा सकता है कि अगर उन्होंने ऐसा एक्शन किया so it will cut off all the economic relations with that state. It will put embargo, it will put restriction on the trade. And similarly it can also blockade the state. Blockade का मतलब है कि किसी स्टेट के ऊपर ऐसी पाबंदी लगा देना जिसकी वजह से बाकी जो स्टेट्स हैं वो वहाँ पे ना आ सकें, उसकी एक नाकाबंदी कर देना ताकि वहाँ पे कोई फ्रीली मूवमेंट ना हो सके. So because of this and because of these economic restrictions, again the other state will not do any particular activities and these will be acting as deterrents. उसके बाद जो फोर्थ फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड कल्चरल डिटेरेंस. व्हाट इज कमिंग इन कल्चरल डिटेरेंस? दिस इज रिलेटेड टू स्कॉलरली एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल, बायकॉटिंग एन इवेंट सच एज ओलंपिक गेम्स. जिस तरह ओलंपिक गेम्स हैं, जिस तरह टूर्नामेंट है, जिस तरह गेम्स हैं, तो अगर कोई कंट्री उससे इनकार करती है, उसमें शिरकत नहीं करती, जिसकी वजह से जो पहला स्टेट है वो फिर वो एक्शन नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, द सोवियत यूनियन बायकॉट द ओलंपिक गेम्स इन यूएस ओनली टू एम्बेरस यूएस दैट इट बिकम्स फ्रेंडली विद सोवियत यूनियन. तो ऐसा भी हो सकता है कि अ कंट्री गो फॉर cultural kind of deterrence in order to convince other state to be acting in the manners that the first state wants to be. After the deterrence forms, let's also analyze the situation of India and Pakistan. India और पाकिस्तान की सिचुएशन आप लोगों को बखूबी मालूम है कि दोनों के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अमूमन कशीदा रहे हैं and their relations are because of the Kashmir issue. And because of it, both the countries were in an arms race. Both the countries were acquiring arms and weapons since independence. And because of it, both have very high defense budgets. उसके बाद क्या हुआ? The India, because it has a larger army than Pakistan, it also possesses superiority in conventional weapons. क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनकी कंट्री भी बड़ी है, उनके पास फौज की तादाद भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके पास जो वेपन्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं, जो बॉम्बर्स हैं, तो वो भी पाकिस्तान से निस्बतन ज़्यादा हैं. जिसका मतलब ये हुआ कि इफ़ इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, सो पाकिस्तान हैज़ टू स्ट्रगल वेरी हार्ड in order to compete with the traditional superiority of the Indian Army. So what happened? In 1998, Pakistan got its nuclear test. It tested its nuclear explosion. It tested its nuclear bomb. Before it, India detonated or tested its nuclear bomb. And after it, Pakistan went for the same kind of test. अब जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और न्यूक्लियर हथियार और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, तो अब ये जो न्यूक्लियर हथियार हैं, ये जो हमारे एटम बम हैं, ये अब डेटरेंट है. ये पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी है.
क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास ये ना होता तो कन्वेंशनल वेपन्स में, ट्रेडिशनल वेपन्स में इंडिया की जो तादाद है और जो सुपीरियरिटी है वो पाकिस्तान से ऊपर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एज लोअर बन जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो डेटरेंट है, वो इंडिया को बाज रखते हैं। अब क्या हो रहा है? नाउ न्यूक्लियर वेपन ऑफ पाकिस्तान इज अ डिटेरेंस अगेंस्ट इंडियाज एक्सपेंशन एज डिजाइन। जो इंडिया का एक एक्सपेंशन अपने आप को बड़ा करने की और अपने आप को एक बड़ा लीडर कहलाने किया, जो उनकी एक ख्वाब है, एक ख्वाहिश है, अब उसके आगे जो रुकावट है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर हथियार हैं। इंडिया ऑफर्ड पाकिस्तान टू साइन फॉर नॉट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन केस ऑफ अ वॉर। इंडिया मुसलसल पाकिस्तान से ये एग्रीमेंट करना चाहता है, पाकिस्तान को ये कमिट करना चाहता है कि अगर दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो बोथ ऑफ देम विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स, दे विल ओनली फाइट विद देयर ट्रेडिशनल वेपन्स। एंड पाकिस्तान is rejecting this demand. Pakistan is rejecting this agreement. Pakistan says no, we cannot fight with only conventional weapons. We can also use nuclear weapons, because in conventional weapons ultimately India would be more superior, so it may win the war. तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान अपनी बका के लिए न्यूक्लियरी हथियार का इस्तेमाल करेगा। सो दिस न्यूक्लियर वेपन्स आर सेफ्टी फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान जब इसकी धमकी देता है, ये थ्रेट देता है, तो ये थ्रेट इंडिया को बाज रखता है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने से, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन आएगी, क्योंकि दोनों के पास हथियार है और जिसकी वजह से दोनों ममालिक के लिए खतरा है। तो इस न्यूक्लियरी हथियार की वजह से दोनों ममालिक एक दूसरे से जंग नहीं कर रहे और इसी वजह से अमन कायम है। इस इमेज में आपको 1998 का जो वाक़या है वो नज़र आ रहा है। दिस वॉज व्हेन पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर बॉम्ब इन बलोचिस्तान एट अ प्लेस कॉल्ड चागी। तो चागी के मकाम पे ये बाकायदा टाइम भी नज़र आ रहा है और डेट भी है कि इट्स 28 मई in which Pakistan tested its nuclear explosion, nuclear bomb. Enforcing deterrence. How a country enforce its deterrence? What is the method? So deterrence aims to persuade the opponent not to initiate action. The demand is made, the consequences of acting are explained. If the opponent crosses the line drawn, then punitive action is taken. तो क्या होता है? डिटेरेंस दूसरे कंट्री को परसुएट करता है, उसको राज़ी करता है, उससे ये बात मनवाता है कि उसने कोई काम नहीं करना। अगर उसने वो काम कर लिया तो पहले से उसको बता दिया जाता है कि अगर उन्होंने ये काम किया तो इस काम की वजह से ये नताइज लागू हो सकते हैं। वो जो नताइज होंगे वो डिटेरेंस के तौर पे काम करते हैं, जिसमें अटैक हो सकता है, जिसमें डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव हो सकते हैं, उसमें इकोनॉमी भी हो सकते हैं, जैसा भी हमने उनके फॉर्म्स मजीद पढ़ लिए हैं। सो डिटेरेंस में इन्वॉल्व द यूज ऑफ थ्रेट टू हर्ट और प्रॉमिस टू रिवॉर्ड। सो डिटेरेंस में दो किस्म की बातें आ सकती हैं। डिटेरेंस में कोई कंट्री या तो थ्रेट कर सकती है या वो रिवॉर्ड भी कर सकती है। तो लिहाजा इसका मकसद सिर्फ धमकी देना नहीं है, बल्कि इसके अलावा इनाम देना भी है। तो डिटेरेंस में दोनों आ सकते हैं। इसमें धमकी भी काम कर सकती है और इसके अलावा कोई इनाम देना, कोई लालच देना, कोई खुशखबरी देना। सो दीज कैन आल्सो बी एक्टिंग एज अ डिटेरेंस that because of reward, that because of some good news, the other state may also obey the demands of the first state. For example, what is a threat? A threat is a pledge to impose cost if the opponent acts contrary to one wishes. Threat एक ऐसे एक्शंस हैं जिसकी वजह से काफ़ी ख़तरनाक नताइज हासिल हो सकते हैं, काफ़ी ख़तरनाक नताइज का सामना हो सकता है। किसी को धमकी अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो नताइज होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, नताइज बुरे होंगे।
दूसरे कंट्री को कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अगर पहला स्टेट उस पर अमल ना करे, उसकी मर्जी के खिलाफ जाए, तो इन दैट केस it will face the consequence of threat. It will be punished. It will be given some kind of loss, or it will take some cost. What is promise? A promise is a pledge to provide benefits to the opponent if he acts in accordance with one's wishes. So it's a pledge to provide benefits. तो promise में एक state दूसरे को कोई फायदा देने का वादा करता है। वो उसके साथ ये पैमान करता है, ये वादा करता है कि अगर वो उसके मर्जी के मुताबिक अमल करे तो उसको कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसको कुछ इनाम दिया जाएगा, उसको कुछ बेनिफिट हासिल होंगे। तो इन फ़ायदों की वजह से भी जो एक स्टेट है वो दूसरे की मर्जी के मुताबिक काम कर सकता है। तो डिटेरेंस में ये दो किस्म के हरबे इस्तेमाल होते हैं, या तो थ्रेट काम आएगी, या इसके अलावा रिवॉर्ड भी काम हो सकता है। So the use of threat and reward both are ultimately very beneficial for enforcing deterrence. इसको दूसरे ज़ुबान में हम कहते हैं carrot and stick policy. Carrot and stick policy. This was the policy that is mostly carried by United States. So the US applied this policy in order to enforce its national interest in the country by this carrot and stick policy, which is basically the use of threat and reward policy. In these images, you can see how the threat and reward works. So you can see that the carrot and stick policy is that when you are giving some benefit, so that's the carrot. ये आप उसको फूड दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं, तो ये रिवॉर्ड है, ये बेनिफिट है। अगर वो उसके मुताबिक काम ना करेगा तो उसके बाद उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उसको स्टिक दिया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। और इस तरह आपको दूसरे इमेज में भी नजर आ रहा है कि इफ द ऑब्जेक्टिव्स आर मेट, इफ अ स्टेट ओबेज, देन दे आर गिवन सम फाइनेंशियल एड, दे आर गिवन मनी। इफ दे आर नॉट acting in accordance with one's wishes, then the stick is there, then the weapons are there, then there are some punishment actions which are taken against the state. So these are some of the concepts which are related to reward and threat policy or carrot and stick policy. यहाँ पे एक बात काफ़ी काबिल गौर है कि both are costly. Threat and reward both are very costly. मतलब है कि अगर कोई स्टेट दूसरे को धमकी दे रहा है तो ये भी ख़तरनाक है, इसके भी उस स्टेट के लिए काफ़ी ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं, और जो रिवॉर्ड है वो भी उस स्टेट के लिए ख़तरनाक है। जिसका मतलब ये है कि थ्रेट एंड रिवॉर्ड बोथ आर कॉस्टली फॉर द स्टेट विच इज़ गिविंग इट। कोई भी स्टेट जो कि रिवॉर्ड या थ्रेट दे रहा है तो वो उस स्टेट के लिए जो दे रहा है उसके लिए कॉस्टली है, उसके लिए एक्सपेंसिव है, उसके लिए उसके ऊपर खर्चा आ रहा है, वो उसके लिए नुकसानदेह है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ थ्रेट एंड रिवॉर्ड कैन चेंज द बिहेवियर. इट कैन मेक द स्टेट ओबे what the state wants, but threats and promise both are costly to one making them. जो उसको दे रहा है, जो स्टेट थ्रेट या रिवॉर्ड दे रहा है, तो सिर्फ उस स्टेट के लिए ये कॉस्टली है, उसके लिए ये खर्चे से कम नहीं है, उसके ऊपर उसका कॉस्ट आ रहा है, उसका खर्चा आ रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। वो कैसे? थ्रेट्स आर कॉस्टली if the player fails, which means the opponent disobey. थ्रेट इसलिए ख़तरनाक है कि अगर थ्रेट ने काम नहीं किया, तो अगर काम नहीं किया इसका मतलब है कि जो दूसरा स्टेट है उसने बात नहीं मानी, तो जिसकी वजह से वो स्टेट अब क्या करेगा, जिसने थ्रेट दी है अब उसने अपने थ्रेट को पूरा भी करना है, तो दिस मीन्स इट विल गो फॉर सम एक्शंस. इट कैन बी मिलिट्री एक्शन, इट कैन बी डिप्लोमेटिक एक्शन, एंड एज अ रिजल्ट it will make it a cost for the state that has made it. जिसने वो धमकी दी है अब उसके लिए खतरनाक है, उसका खर्चा आ रहा है, उसका लॉस हो रहा है. So this is how when if it fails, which means the other state does not obey and now it has to use the threat, and while using the threat
it will be giving it some loss, and as a result it is costly for that state. लेकिन अगर दूसरे स्टेट ने बात मान ली है, if promises are also costly, if the player wins or the opponent obeys, अगर उसने रिवॉर्ड दी है, अगर उसने इनाम का लालच दिया है, तो अगर दूसरे स्टेट ने उस बात को मान लिया तो अब उसको रिवॉर्ड देना पड़ेगा. तो अगर वो रिवॉर्ड दे रहा है तो अगेन उसका नुकसान हो रहा है. तो लिहाजा थ्रेट एंड रिवॉर्ड बोथ आर कॉस्टली टू द स्टेट that is making those two forms. Example again given है. Suppose US wishes to compel North Korea to abandon their nuclear program. US North Korea को compel करना चाहता है, मजबूर करना चाहता है कि वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर हथियार वो हासिल कर रहा है या जो बना रहा है, उस प्रोग्राम को ख़त्म कर दे और न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल या उसका जो बनाना है उसको बंद कर दे. इसको अगर वो मानता है तो ये उसको रिवॉर्ड देगा, और अगर उसको इस बात को वो नहीं मानता तो जिसकी वजह से उसके पीछे यूएस थ्रेट है, फिर धमकी है. धमकी क्या है? थ्रेट इज कटिंग ऑफ इकोनॉमिक एड, लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स ऑन द पावर प्लांट्स, कि वो उसकी जो इमदाद है वो रोक देगा और साथ में उसके ऊपर हमला कर सकता है. और प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड क्या है? द रिवॉर्ड इज to invest in the country, to give economic aid and build other plants. तो रिवॉर्ड ये है, लालच ये है कि अगर नॉर्थ कोरिया उसके ऊपर अमल कर दे, उसकी बात मान ले, तो फिर उसको इमदाद मिल सकती है. वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स बन सकते हैं, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है. अब अगर नॉर्थ कोरिया इस पे अमल करे और जिस तरह यूएस चाहता है, तो अब यूएस ने उसको अपनी इमदाद देनी है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो लिहाजा इट इज़ कॉस्टली. और अगर नॉर्थ कोरिया ने अमल नहीं किया तो तब भी यूएस ने अटैक करना है, क्योंकि उसने बाकायदा धमकी दी है ऑफ द यूज ऑफ फोर्स, एंड देयरफॉर नाउ द यूएस हैज टू गो फॉर एन अटैक. सो बोथ ऑफ द थ्रेट एंड रिवॉर्ड आर कॉस्टली फॉर द स्टेट which is making it. So deterrence is conservative. It seeks to protect the status quo. डेटरेंस क्या करता है? ये बाज रखता है, ये चाहता है कि जो हालात हैं वो इस तरह कायम रहें, एक स्टेट एक्शन पे ना आए, वो स्टेटस को जो सिचुएशन है वो बरकरार रहे. सो डेटरेंस इज कंजर्वेटिव. इट ट्राइज द स्टेट्स नॉट टू गो फॉर एनी एक्शन. आफ्टर दिस लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ डेटरेंस. डेटरेंस की हमारे पास 4 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट डेटरेंस. What is direct deterrence? In direct deterrence, the defender issues a deterrence that prevents the challenger from attacking her. During the Cold War, both the US and USSR engaged in direct deterrence with respect to each other, and the status quo was maintained. Pakistan nuclear weapon program against India is again a deterrence. तो डायरेक्ट डिटरेंस में क्या होता है? एक स्टेट बराह रास्त दूसरे स्टेट को धमकी देता है कि अगर उसने कोई ऐसा एक्शन किया तो उसके काफ़ी ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं. तो अगर एक स्टेट डायरेक्टली दूसरे स्टेट को धमकी दे कि अगर उसके ऊपर हमला किया गया अपने आप को बचाने के लिए, तो वो उसको जो धमकी दे रहा है. सो दिस काइंड ऑफ डिटरेंस इज कॉल्ड डायरेक्ट डिटरेंस. फॉर एग्जाम्पल यूएस एंड सोवियत यूनियन. तो यूएस ने डायरेक्टली सोवियत यूनियन को चैलेंज दिया था, उसको डायरेक्ट ये थ्रेट दिया था कि इफ इट अटैक सो यूएस विल यूज इट्स न्यूक्लियर weapons, and this was the direct deterrence. The US was trying to protect itself, and by protecting itself, this kind of deterrence is called direct deterrence. When a country wants to protect itself and therefore give a direct threat to another state कि अगर वो ऐसा काम करेगा तो उसकी वजह से उसको काफ़ी ख़तरनाक नताइज का सामना हो सकता है. इसी तरह पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो वो पाकिस्तान की बका के लिए है. तो पाकिस्तान ने इंडिया को डायरेक्टली थ्रेट दिया हुआ है कि इट कैन यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन्स in case of an attack on Pakistan, because Pakistan have to secure its own territorial integrity. So this is now a direct deterrence.
Pakistan deterrence is directly to defend its own self, to defend its own homeland. किसी दूसरे मुल्क को बचाने के लिए उसने कोई deterrence नहीं दी है, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए, अपनी स्टेट को बचाने के लिए उसने जो deterrence का इस्तेमाल किया है. So this is called direct deterrence. So in this, the state directly make the other state not to attack her, and this is would be the coming in the domain of direct deterrence. This was all for today's lecture. I hope you understand. Before I stop, let's have a review of today's lecture. Dear students, in today's lecture we define the concept of deterrence and we define deterrence. Deterrence एक सिंपल ज़ुबान में एक ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे अवामिल हैं, ऐसे हथियार हैं एक स्टेट के पास जिसकी धमकी देके वो दूसरे स्टेट को अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाता है, उसको ये बावर करवाता है कि अगर उसकी मर्जी पे काम ना किया गया, सो देन दैट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर स्टेट. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है या न्यूक्लियर हथियार जो हैं, जिस तरह सोवियत यूनियन है, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट है, तो क्या हुआ? During the Cold War, they were in a constant state of conflict. They were in a constant state of struggle. And because Soviet Union was very powerful than US, therefore US feared that at any time Soviet Union can attack her. तो उसने क्या किया? उसने अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो अपने न्यूक्लियर हथियार हैं, उसको डेटरेंस बना दिया. उसकी धमकी दे दी सोवियत यूनियन को कि अगर उसने उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया, then US would use the nuclear weapons against Soviet Union. So this was the threat which was working, and therefore there was peace between the two states. So deterrence is something that prevents other states from doing any action because of the use of threat, because of the loss that it will have after if it does not obey that threat. Deterrence को इन्फोर्स करने के दो तरीके हैं. वन इज थ्रेट एंड द सेकंड इज रिवॉर्ड. एक तो कोई स्टेट दूसरे को डायरेक्टली थ्रेट कर सकता है कि अगर उसने बात नहीं मानी, देन सम एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट दैट स्टेट, और इट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, या वो रिवॉर्ड भी दे सकता है. अगर वो उसकी बात के ऊपर अमल करे, देन इट विल बी गिवन सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स. रिमेंबर, बोथ थ्रेट्स एंड रिवॉर्ड आर कॉस्टली. अगर कोई स्टेट फर्स्ट करें बात नहीं मानता, then the state has to go for the threat, it has to go with the action, and this will be costly for the state. और अगर वो state बात मान ले, then the first state has to give it the reward, again it will be costly. But remember, threat and reward both are costly, but they are used as a deterrence to make other states obey what the other states wants to be. अब इसमें हमने ये भी देखा है कि डिटेरेंस सिर्फ मिलिट्री नहीं हो सकता, बल्कि इसके बाकी भी फॉर्म्स हैं. डिटेरेंस कैन बी मिलिटरी, फॉर एग्जांपल द यूज ऑफ फोर्स. इट कैन आल्सो बी डिप्लोमेटिक, इट कैन आल्सो बी इकोनॉमिक, इट कैन आल्सो बी कल्चरल. तो लिहाजा जो फॉर्म्स ऑफ डिटेरेंस है वो मिलिट्री भी हो सकते हैं, वो डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं, वो इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, and it can also be cultural. By all these forms of deterrence, a state wants to ensure that the other state follow in the commands or in the line what the other states wants to be. तो जिसकी वजह से जो states हैं वो एक दूसरे की बात मानते हैं, और उसकी वजह से कोई ऐसा एक्शन जो कि अनप्लेजेंट होता है उसको रोका जाता है. अगर कोई स्टेट वो काम ना करे और उससे बाज रहे, तो मतलब है कि डिटेरेंस कामयाब रहा है. और अगर पहला स्टेट उसको मानता नहीं है, उसके खिलाफ काम कर लेता है, इसका मतलब है कि जो डिटेरेंस है वो इफेक्टिव नहीं था. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.